मेरे प्यारे students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing a beautiful question that was asked in IPMAT examination in previous years. The question is based on pair of straight lines. Start करते हैं session को. And if you have not already subscribed to our channel, then make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon. And you can also message me on Telegram at ADITYAKT and join the WhatsApp channel. Link description में check out कर सकते हो. So this is a question from IPMAT 2021. If one of the lines given by the equation 2x square plus axy plus 3y square is equal to 0 coincides with one of those given by 2x square plus bxy minus 3y square is equal to 0 and the other lines represented by them are perpendicular, then what will be the value of a square plus b square? So यहाँ पे हमें equation जो given है, that equation is for pair of straight lines. Okay, so थोड़ा सा basics कर लेते हैं पहले. ठीक है, let us say there are two lines and equation of first line is a1x plus b1y plus c1 equal to 0. ठीक है, this is L1, line L1. And equation of second line is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. And this is line L2. So the equation of pair of straight lines will be L1 into L2 equal to 0. ठीक है, L1 is basically a1x plus b1y is equal to 0 plus c1 equal to 0. ठीक है, so equation of pair of straight lines will be a1x plus b1y plus c1 into a2x plus b2y plus c2 and this is equal to 0. This is the equation of pair of straight lines, the general equation of pair of straight lines. But in this particular case, जो हमें equation दिया है, that equation is 2x square plus axy plus 3y square is equal to 0, which is a specific case and that is known as homogeneous second degree equation. Which is ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. ठीक है, this is also representing a pair of straight lines, but this is a particular case because this is satisfying basically x and y both equal to 0. And in this case, both lines are passing through origin 0, 0. So their intersection point will be at origin 0, 0. And the equations of lines will be, because general equation क्या होता है, y is equal to mx plus c लिखोगे या लिखोगे a1x या ax plus by plus c is equal to 0. But either way, अगर x and y if both are equal to 0 and origin is passing through that line, so in that case this constant term will be equal to 0. है कि नहीं? और हम प्रेफर करेंगे फर्स्ट फॉर्मेट को. So in that case c is equal to 0. And if c is equal to 0, so the equation of line will be y is equal to mx. देखिए both these lines are passing through origin. Okay, so अगर फर्स्ट लाइन का हमारा मान लेते हैं स्लोप m1 है, सेकेंड लाइन का स्लोप m2 है, तो फर्स्ट लाइन विल बी y is equal to m1x and second line will be y is equal to m2x. y is equal to m1x and y is equal to m2x. अब अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, या फिर पहले देख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस क्या होगा. अगर हमारी पहली लाइन है y is equal to m1x, तो वी कैन राइट दिस एज y minus m1x equal to 0. For second line, this will be y minus m2x equal to 0. So the equation of pair of straight lines will be y minus m1x into y minus m2x equal to 0. हम मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 टाइम्स x प्लस m1 m2 इक्वल टू 0. तो दिस विल बी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपनी गिवन इक्वेशन को, और फिर उसके बाद में m1 प्लस m2 का वैल्यू मिल जाएगा, m1 m2 का वैल्यू मिल जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन. ओके, so going back to the question. So the question is, if one of the lines given by the equation 2x square plus axy plus 3y square is equal to 0 coincides with one of those given by 2x square plus bxy minus 3y square is equal to 0. यानी कि एक लाइन तो दोनों केसेस में कॉमन है, दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, वी हैव वन लाइन कॉमन, यानी कि एक लाइन का स्लोप सेम होगा, बिकॉज अल्टीमेटली इफ बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन सो स्लोप इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो फर्स्ट केस में फर्स्ट इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस axy plus 3y square, this is equal to 0. And there are two lines, let us say slope of one line is m and slope of second line is m1. And in the second case, the equation of pair of straight lines 2x square plus bxy
-3y² इज इक्वल 0 एंड वन लाइन इज कोइंसाइडिंग, तो एक लाइन का स्लोप तो सेम ही रहेगा, ठीक है, चाहे यहीं पे बना ले, फर्स्ट केस में ही फॉर्म कर लेते हैं। सो फर्स्ट केस में वन लाइन इज कॉमन, रेड से डिनोट करते हैं, सो वन लाइन इज कॉमन and slope for that line is equal to m only, and second line is perpendicular to the to this line, perpendicular to this line. So let us say this is that line and this is also passing through origin, so the slope will be m2 and m2 is perpendicular to m1. So if two lines are perpendicular, in that case the product of their slopes m1 m2 that is equal to -1. So with this we are getting that m2 is equal to -1 upon m1. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो m2 हमारा विल बी इक्वल टू -1 बाई m1. ओके, ठीक है, सो लेट अस कन्वर्ट दीज लाइंस इनटू दिस फॉर्मेट, y² माइनस m1 प्लस m2 टाइम्स x प्लस m1 m2. एक सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ लिखा था, -m1 प्लस m2 टाइम्स xy होगा, xy होगा, और फिर लास्ट में m1 m2 इंटू x² होगा. दैट इज इक्वल टू 0. ओके, सो इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि y² का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को, तो 2x² प्लस axy प्लस 3y² डिवाइड बाई 3, तो दिस बिकम्स 2/3 टाइम्स x² प्लस a/3 टाइम्स xy प्लस y² is equal to 0. And in second equation, this will be 2/3 times x² minus b/3 times xy, तो यहाँ पे माइनस आ गया, प्लस y² क्योंकि -3 से डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई. ओके, इन द फर्स्ट केस स्लोप्स आर m एंड m1, स्लोप्स आर m एंड m1, कंपेयर करा लो. सो दिस विल बी y², इन द फर्स्ट केस इक्वेशन क्या होगा हमारा, दैट विल बी y² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो -m प्लस m1 टाइम्स xy प्लस m इंटू m1 times x². This is equal to 0. Now compare these two equations because these two are same. ठीक है, this was first equation, this was second equation. So first and third are same. So compare first and third coefficients. So m plus m1 becomes equal to a/3 with a negative sign, and m into m1 is equal to 2/3. Similarly, fourth equation क्या होगा, जहां पे कि हमारा m2 and m are slopes. So that equation will be y² minus m plus m2 times xy plus m into m2 x² equal to 0, and hence m plus m2 will be equal to, कोफिशिएंट क्या है xy का, -b/3, और यहाँ पे -m1 प्लस -m प्लस m2 यानी कि b/3, and m into m2 this will be equal to -2/3. So we are getting m plus m1 is equal to -a/3, m into m1 that is 2/3, m plus m2 b/3, and m into m2 that is -2/3. We also know that m2 is -1 by m1, or we can say that m1 into m2 that is equal to -1. तो अगर m1 into m2 -1 है, if you multiply these two equations m into m1 and m into m2, ठीक है, let us say these are this was fourth equation, ज़्यादा equations हो गई, चलो ठीक है, this is 5, this is 6, this is 7 and this is 8. If you multiply 6 and 8, m into m1 is -2/3 and m into m2 is -2/3, so multiply these two, so m square into m1 m2 is equal to 2/3 into -2/3 -4/9, and m1 into m2 that is equal to -1, so m square becomes equal to -4/9 into -1, so that is equal to 4/9, और यहाँ से हमें m मिल जाएगा इक्वल टू +-2/3, m इज इक्वल टू +-2/3. ठीक है, और अगर m आ गया हमारा, m के लिए दो केसेस बनेंगे, इधर m विल बी 2/3 और m विल बी -2/3. अब अगर m 2/3 होगा तो m इंटू m1 क्या है, दैट इज 2/3, तो m1 इन दैट केस विल बी इक्वल टू 1, m1 विल बी इक्वल टू 1, एंड इफ m1 इज इक्वल टू 1, m इज 2/3, तो m प्लस m1 विल बी 5/3, तो a विल बी इक्वल टू -5, बिकॉज m प्लस m1 विल बी इक्वल टू 5/3, 1 प्लस 2/3 5/3 हो जाएगा, और अगर 5/3 हो रहा है तो इन दैट केस 5/3 इज इक्वल टू -a/3, तो a विल बी इक्वल टू -5. सिमिलरली m2 क्या होगा, m इज इक्वल टू 2/3, तो m इंटू m2 इज -2/3, यानी कि m2 विल बी -1, एंड इफ m2 इज -1,
तो m plus m2 will be 2/3 minus 1 यानी -1/3, तो b will be equal to -1, and hence a square plus b square will be equal to -5 square plus -1 square that is equal to 26. सेकेंड केस में इफ m is equal to -2/3, तो m1 will be equal to -1, so a will be equal to 5. Similarly m अगर -2/3 है तो m2 will be equal to 1, and hence 1 -2/3 यानी कि b will be equal to 1. So a is 5, b is 1. Irrespective of that, a square plus b square तो 26 ही आएगा इन बोथ केसेस. और वो तो वैसे भी समझ आना चाहिए था क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शंस गिवन नहीं है, तो एक यूनिक आंसर ही हमें मिलेगा. तो दोनों केसेस में वी आर गेटिंग आंसर एज इक्वल टू 26. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 26 इन दिस केस. इज दिस क्लियर? ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? अब देखो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हमें होमोजेनियस सेकंड डिग्री क्वेश्चन गिवन होगा, तो जो कन्वेंशनल मेथड होता है वहां पे हम क्या करते हैं कि वी आर डिवाइडिंग इन दिस केस बाई एक्स स्क्वायर. पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जैसे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अवर इक्वेशन विल बिकम 3 टाइम्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर यानी कि वाई बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि ए इंटू वाई बाई एक्स प्लस 2, एंड दिस इज इक्वल टू 0. इक्वेशन बन गया 3 टाइम्स वाई बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. और हमें पता है कि ऐसे केसेस में जो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिल रहा है उनका इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स इज द जनरल इक्वेशन. सो इफेक्टिवली m becomes equal to y by x. So we replace y by x by m. So the equation for the first pair of lines is 3m square plus am plus 2 equal to 0. और यहाँ पे क्योंकि हमें जो रूट्स मिलेंगे, रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे m की वैल्यूज यानी कि वैल्यूज ऑफ स्लोप्स. तो अगर हमारा पहला लाइन का जो स्लोप है, द कॉमन लाइन का स्लोप दैट इज m, एंड फॉर द सेकंड लाइन द स्लोप इज इक्वल टू m1. और फिर सेकंड जो पेयर ऑफ लाइंस है वहां पे हमारा एक लाइन तो कॉमन है, और जो सेकंड लाइन दैट इज परपेंडिकुलर, सो लेट अस से स्लोप फॉर दैट लाइन इज इक्वल टू m2. ठीक है, बाकी कहानी सिमिलर रहेगी. तो पहले वाली इक्वेशन हमें वैल्यूज क्या मिल जाएगा, m प्लस m1. बाकी सब कुछ कहानी सेम रहेगा, बस इतना कि हमने कि डिवाइड किया है एक्स स्क्वायर से. बाकी तो इक्वेशन सेम ही बनेगा, m प्लस m1 इज इक्वल टू -a/3 एंड m इंटू m1 इज इक्वल टू 2/3 एंड सिमिलरली डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इन द सेकंड इक्वेशन. तो सेकंड इक्वेशन हमारा बन जाएगा वी आर डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर, तो -3m स्क्वायर प्लस b माइनस bm, सॉरी माइनस bm एंड प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0. और यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगा m प्लस m2, दिस इज इक्वल टू, एक सेकेंड, m प्लस m1 आया था हमारा -a/3, और यहाँ पे हमने डिवाइड किया है, वी हैव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. तो ठीक है, -3m स्क्वायर और प्लस bm आएगा यहाँ पे, क्यों गड़बड़ कर रहे हैं. तो b/3 आ जाएगा m प्लस m2 एंड m2 विल बी इक्वल टू -2/3. बाकी कहानी सिमिलर ही रहेगी कि हमें इसके बाद में पता है कि m1 एंड m2 आर परपेंडिकुलर, सो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 एंड हेंस मल्टीप्लाई दीज टू लाइंस. सो हमें m स्क्वायर मिल जाएगा इक्वल टू 4/9 यानी कि m इज इक्वल प्लस -2/3 एंड हेंस हमें a और b की वैल्यूज मिल जाएगा, अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे. बट दिस इज द प्रॉपर मेथड टू सॉल्व इट, जहाँ पे कि हमने एक ही अननोन में लिया इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमने एक ही अननोन m में कन्वर्ट कर दिया इक्वेशंस को. ठीक है, क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? So this was the solution to the question that was given in IPMAT 2021 एग्जामिनेशन. आई बिलीव ये बातें समझ में आएंगी. फिर भी अगर पेयर ऑफ लाइंस पे एक प्रॉपर सेशन चाहिए जहाँ पे कोई कुछ और क्वेश्चन हम 4-5 एडिशनल क्वेश्चन डिस्कस करें और कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, तो कमेंट जरूर मेंशन करना. आई विल मेक दैट प्रॉपर सेशन एज वेल एडिशनली. ठीक है, अभी इस सेशन में इतना ही रखते हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.